Good morning students. Our next exercise is exercise 6.3 tangents and normals. Very simple concept it is. Okay, so that just I am delivering the what is the concept. Okay, already you have studied the equation of the straight line. The equation of the straight line passing through a point. Any point is given x1 y1. You can get the equation of the straight line. What was it? That is y minus y1 if you know the slope of the line m, x minus x1, one point slope form. The equation of a straight line, you remember, if you know the slope of the line and you know the point on it, you can get the equation of the straight line. That is what? Y minus y1 equal m x minus x1. Okay, and if two lines they intersect in the plane, we can get the angle between the two straight lines. What was the formula? That was tan theta. It is equal to mod of m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. That is also slope of one line is m1. Let slope of another line is m2. You can get the angle between two lines. This formula also we have studied. Okay, and if two lines they are perpendicular to each other. Okay, if two lines they are perpendicular. Two lines, if they are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other. What is the relation between their slope? That is implies m1 m2 equal minus 1. So you need to remember the formulas because we are going to use it. Okay, and if two lines are parallel, what is the relation between their slope? That is your m1 is equal to m2. This was the relation between their slopes. Okay, that is, now see, if a curve is given to us. Okay, this is the curve. Okay, this is the curve and we have been given the equation of the curve y equal fx. Okay, at any point we draw the tangent. Okay, let this point is x0 y0. Okay, and we need to know the equation of the tangent. Okay, so equation of the tangent, it's a straight line, it is passing through a point, so I need what? I need the slope of the tangent. और आपके पास क्या concept है? It is what that it is going on application of derivatives. तो उससे relate कैसे करेंगे हम लोग? We will slope of the tangent is equal to dy by dx at that point. Remember this so many times, so many videos. I am again repeating this. Slope of the tangent. Okay, at any point of the curve, is equal to what? Dy by dx at that point x0 y0. This is the concept. So the equation of the tangent, simply equation of the tangent will be what? Equation of the tangent will be the equation of the straight line passing through x0 y0. So it will be y minus y1. Instead of y1 y0 I am writing equal m. Slope of the tangent is what now? dy by dx. मतलब मैं कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँगी. I will be getting from here y dash dy by dx and I am going to put this point in that. So I will be getting the slope of the tangent at what? At x0 y0. Into what? X minus x0. This is the equation of the tangent. So easily you are going to get it. Okay, equation of the tangent, equation of the straight line passing through which point? Given point. Slope निकालना है. Slope निकालने के क्या करूँगी? कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे. y डैश इक्वल टू f डैश x और इसमें आप क्या पॉइंट लिख दोगे? x0 y0 पुट कर दोगे तो ये आपको क्या मिल गया? स्लोप ऑफ द टेंजेंट. दिस इज नथिंग एल्स बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. नॉर्मल is nothing but perpendicular, is a perpendicular drawn at that point to the tangent. मतलब अगर टेंजेंट का स्लोप m1 है, ओके, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m1 एंड दिस इज m2, तो व्हाट इज द रिलेशन? m1 m2 इक्वल -1. करेक्ट. तो m1 हमने स्लोप क्या दे दिया? dy by dx एट x1 y1. करेक्ट. अब हमको स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल जाएगा इक्वल -1. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल इट विल बी m2 इज इक्वल टू -1 बाय dy by dx
एट दैट पॉइंट x0 y0। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट का स्लोप तो पता पड़ गया डिफरेंशिएट करके कर्व को रख के। तो अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, बिकॉज रिलेशन बिटवीन दीज टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन m1 m2 इक्वल -1। तो m2 हमने क्या निकाल दिया, -1/। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई आपको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल will be what, y minus, you can write y0 or y1 whatever point you can put easily. Okay, I am writing this one, y0 equal -1 by dy by dx at point you need to put here x0 y0 x minus x0. This is your equation of normal. Okay, simply that is simple concept. Now two conditions are there. If the tangent is parallel to x-axis, first condition is if the tangent is parallel to x-axis। तो अब ये अगर आपने बना दिया कि ये कर्व है और टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis है, तो tan थीटा स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल थीटा इक्वल 0 हो गया आपका। करेक्ट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, y माइनस y1। अब ये तो 0 आ गया आपका पार्ट, तो दिस इज द इक्वेशन y इक्वल y1। ओके, एंड इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, if tangent is perpendicular to x-axis, यानी कि आपका कैसा हो जाएगा कर्व, अगर सपोज यूँ है आपका कर्व और ये आपकी टेंजेंट जा रही है। ओके, तो थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, π/2। तो आपका tan थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, 1/0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, dx बाई dy इक्वल 0। ओके, हेयर तो वॉट, dy बाई dx इक्वल 0। यहाँ पे तो क्या था, बिकॉज dy बाई dx, tan थीटा मतलब dy बाई dx। ओके, तो हेयर वॉट विल बी tan थीटा 1/0 मतलब dx बाई dy इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जस्ट वो पार्ट हो जाएगा आपका वॉट, यू आर सेइंग दिस वन y माइनस y1 इक्वल 1/0 इट इज़ ना। सो वॉट दैट इट इज़ योर m x माइनस x1। ये दिस इम्प्लाइज x माइनस x1 इक्वल 0। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी इन दिस कंडीशन 1/0। तो आप क्या बोलोगे, x माइनस x1 इक्वल 0। दिस इज द इक्वेशन इन दैट कंडीशन। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो सिंपल क्वेश्चन आई एम गिविंग यू बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। क्या पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और कर्व की इक्वेशन दे दिया एट दिस पॉइंट। कर्व की इक्वेशन और इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। करेक्ट। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। ये आ जाएगा 2x प्लस 2 dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। करेक्ट और नॉट। 2 इज कॉमन थ्रू आउट, यू टेक आउट दिस वन x प्लस वॉट इज योर 2 इज कॉमन, आई हैव टेकन। ओके, dy बाई dx इट इज़ वॉट योर 1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx नथिंग एल्स बट माइनस x बाई 1 प्लस y। ओके, तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट, तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है आपका, कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो और उसको पॉइंट पुट कर दो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m इक्वल dy बाई dx एट दैट पॉइंट, मीन्स एट विच पॉइंट, -1 2 पुट कर दो, x -1 है, माइनस ऑफ -1 बाई 1 प्लस y, 2 कोऑर्डिनेट है तो क्या हो गया 1/3। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमको निकालना था स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, we know the relation is m1 into m2 because normal is perpendicular to the tangent, so m1 into m2 equal -1। तो already m1 is 1/3 into m2 equal -1, so m2 is what, this implies m2 equal -3। this is your answer। slope of tangent is 1/3 and slope of normal is -3, that is okay, 1 by negative रेसिप्रोकेट। ओके, दैट यू कैन अंडरस्टैंड ना। m2 इज वॉट, -1 बाय m1, तो रेसिप्रोकेट करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। करेक्ट। दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिंपलर, जनरली 1 mark ऑल्सो दिस कैन बी आस्क्ड। द सेकेंड क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन बिट दे हैव चेंज, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। मतलब अगर कोई कर्व है आपका, सिंपली आई एम नॉट टेकिंग एग्जैक्टली, कोई कर्व है और इस पर आपको ये दे रखा है, ओके, टेंजेंट है। अब वो पॉइंट निकालना है आपको एंड स्लोप हैज़ बीन गिवन। What is the question? Find the point at which the tangent to the curve has its slope.
स्लोप इज गिवन कर्व इक्वेशन, यानी कि इसका dy बाई डी एक्स x1 y1 पे इज इक्वल टू 2/3 दैट आई एम सेइंग. सो फर्स्ट आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग दिस. समझ रहे हो बेटा, फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट निकालना है जिसपे इसका स्लोप गिवन है टेंजेंट का. तो स्लोप एग्जैक्टली है क्या, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. कर्व को डिफ्रेंशिएट करो उस पॉइंट पे x0 y0 पे. तो फर्स्ट आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग. तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, dy बाई डी एक्स इज 1/2 रूट 4x माइनस 3 इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा 4, इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन. तो 2 2 जा, इट विल बी 2 बाई रूट 4x माइनस 3. दिस इज dy बाई डी एक्स. नाउ what that yours, you need to find out the point ना. let the point is x1 y1, dy by dx at x1 y1. तो मैं इसको पुट कर दूंगी 2 बाई रूट 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू, स्लोप इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 2/3. so 2 and 2 cancelling out, this implies 3 is equal to under root 4x1 minus 3, squaring both the side. 4x1 minus 3 is equal to 9. so 4x1 is equal to 12. so x1 is equal to 3. x1 आ गया ये पॉइंट. तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट पॉइंट इज ऑन द कर्व, पॉइंट इज वेयर, पॉइंट इज ऑन द कर्व. so it will satisfy the equation of the curve. so y1 is equal to what, y1 is equal to root, you are going to put there 4 3 are 12, 12 minus 3 minus 1. so it will be what, your 9 means 3 minus 1 is equal to 2. okay, so the point is on the curve is what, yours x coordinate is 3 and y coordinate is your 2. that is your answer. okay, now third kind of question is find the equation of the tangent to the curve which is parallel to the line perpendicular to the line. means find the equation of tangent to the curve. curve की equation given है, correct or not. now इस पे जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन. getting this point, find the equation of tangent to the curve which is parallel to the line. इसको आप ऐसे समझो, कोई भी कर्व है, इस पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है. यानी कि यहाँ से मुझे स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन. तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, इसको y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में डाल दो बेटा. तो इट विल बी y इक्वल 2x प्लस 9. तो कंपेयर कैसे करूँगी मैं, y इक्वल mx प्लस c से. तो m कितना आ गया, m2 है. तो स्लोप क्या हो गया, m इक्वल 2. करेक्ट और नॉट, m इक्वल 2. अब m किसके इक्वल आएगा, डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो दैट इज योर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2. नाउ एट दैट पॉइंट dy बाई डी एक्स, द पॉइंट इज लेट इट बी x1 y1. तो इट विल बी योर 2x1 माइनस 2. तो दिस स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यही होता है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1. ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ द लाइन. तो ये इक्वल 2 है. तो 2 पॉइंट क्या मिल गया, 2x1 इक्वल 4. तो x1 इज इक्वल टू 2. तो आपको क्या मिल गया, x1 इक्वल टू 2. अब x1 पॉइंट आ गया, y1 कहाँ है, y1 फ्रॉम द कर्व आई विल बी टेकिंग आउट. कर्व पे भी ये पॉइंट होगा तो कर्व से निकाल लो. ओके, तो इट विल बी योर y कोऑर्डिनेट विल बी योर 2 स्क्वायर माइनस y1 पॉइंट. ओके, y1 पॉइंट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 7. तो y1 पॉइंट क्या आ गया, 7. तो पॉइंट इज योर 2,7. ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 m x माइनस x1. दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 कितना है, 7. स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, 2x माइनस 2. ओके, नाउ यू सॉल्व एन आंसर. ओके, जस्ट सिंप्लीफाई इट. ओके, दैट y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में दे दो, इक्वेशन सॉल्व कर लो. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन. यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा सेकेंड पार्ट में, m1 m2 इक्वल माइनस 1. स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेट इट बी m और स्लोप ऑफ द लाइन क्या है. अब स्लोप ऑफ द लाइन आपका वही, स्लोप ऑफ द लाइन इस y इक्वल mx की फॉर्म में करेंगे. 5y इक्वल 15x प्लस 13. तो डिवाइड कर दो 5 से, व्हाट इट विल बी योर 3x प्लस 13 बाई 5. कंपेयर y इक्वल mx प्लस c. तो m क्या आ गया आपका 3. करेक्ट और नॉट. तो यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन 3 है, पर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट.
लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, ये लाइन है आपकी और ये परपेंडिकुलर, तो m1 m2 इक्वल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेट इट बी m, लाइन का 3 है इक्वल -1, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया -1/3, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू व्हाट, लेट इट बी m इक्वल -1/3. अब नाउ द सेम प्रोसीजर इज देयर, दैट इज स्लोप ऑफ द, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे इक्वेशन को, दैट इज ऑलरेडी वी हैव डन. ओके, dy by dx, इट इज़ योर 2x1, सेम फॉर्म, इट इज़ dy by dx at x1 y1 it is equal to 2x1 minus 2. okay, it is equal to now what, -1/3, it is your -1/3, so 2x1 is equal to -1/3 plus 2, तो ये x1 क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 2x1 3 6 5/3, तो x1 हो गया 5/6. Now put this x1 into the equation of the curve, you will be getting y1. Same procedure, so solve yourself. But one more thing I want to explain. This is the solve yourself I am getting. Okay, this is your question of NCERT. You can match your answer also. Okay, this is for you I am leaving. I hope you must have understood. Now one more concept is there, that is your, if two curves they intersect each other. Okay, if two curves intersect each other, then angle between them is the angle between their tangents. Okay, what actually I am saying that अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइक दिस इज़ वन कर्व एंड दिस इज़ वन कर्व, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द कर्व्स. तो एंगल बिटवीन द कर्व क्या होगा, एक टेंजेंट इस कर्व पे और एक टेंजेंट इस कर्व पे. ओके, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, वो एंगल क्या होगा, एंगल. तो एंगल बिटवीन टेंजेंट मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दे दिया, वो वही है आपका m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2. बट कहाँ से मिलेगा m1 और m2, तो वही, अगर आपका कर्व C1 है और दूसरा कर्व आपका C2 है, तो अगर आप f'(c1) करोगे, पॉइंट कॉमन ही होगा x0 y0 पे, ये हो जाएगा आपका m1. ओके, x0 y0 उसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे और दूसरे कर्व को भी डिफ्रेंशिएट करोगे, f'(c2) कर्व. ओके, और उस पर भी पॉइंट क्या पुट करोगे, x0 y0, तो ये आपका m2 आ जाएगा. मिल गया m1 m2, तो यू कैन गेट द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स. और अगर वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे, टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो कौन सा रिलेशन आएगा बेटा, वही, क्योंकि ऑर्थोगोनली मतलब दे इंटरसेक्ट ईच अदर मीन्स बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो रिलेशन क्या हो जाएगा, m1 m2 इक्वल -1. ओके, टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली मतलब देयर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब उनके स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल -1, और स्लोप हमने बता ही दिया कैसे मिलेगा. दिस इज द रिलेशन. ओके, दिस इज द गुड कंसेप्ट. आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन द क्लास. ओके, रिवाइज, जस्ट गो थ्रू द वीडियो. इफ एनी डाउट यू मे आस्क. थैंक यू स्टूडेंट्स.